welcome on Yourpedia Global, the platform which will help you to get into the research group of a professor with fully funded scholarships. Only thing is you should know what your research background is. You should know in which area you want to go to the foreign universities, and you should know with which professor you should go. If you don't know these things, you will not get fully funded scholarships. You will only burn your money in those universities. Don't do that, because nowadays the geopolitical situations are changing. Those universities only want competent professionals from world over, at least from India or Asian countries. If you're competent, then only they will welcome you, and whether you are competent or not, follow the steps which we tell you. Anyhow, this particular show is a daily show on hot research leads from professors. How you can make best use of this is just see which professors are working in your field of interest, watch it every day, and this should be your everyday rituals. Instead of watching the Netflix series, watch this particular thing. That will help you for your career. And second, in case you get a kick, you get a hit that yes, I want to work with this professor, get in touch with Ishita ma'am. Her number is here. You can get in touch with her and she will help you further to make assessment of your profile, whether you can get fully funded scholarships or not. Second, she will do research, your field of interest, assessment of your inclination, field of interest, your research interest, and then she will connect you, help you get connected to the professors and then mentors of Yourpedia Global. So this particular video, this particular session is related to 31st Jan for fully funded scholarship opportunities, and let me share with you. Okay, first comes Norway, University of Oslo, QS rank 119. QS rank is not important. What is important is if you know this machine learning, image analysis, computer vision, Python programming, and if you have MS degree in physics, statistics or computer science, applied mathematics, electrical engineering and IELTS 6.5, he is the guy you should contact. So if you are MS, master's degree in computer, physics, statistics, mathematics, electrical engineering, and you want to do PhD in the computer science department in Norway, University of Oslo, and you want to do PhD in this particular field, at least see what Professor Peter is to offer you. And whatever opportunities we show here every day, they are fully funded. Good universities, only thing is you sure your interest should match. Okay, this is my favorite college, Imperial College London. Wonderful college, QS rank 2. Now, epidemiology, if you want to do PhD in that, COVID-19, SARS, this vaccine, proficiency in one statistical programming language you should have, like R or Python. So I told every time I'm telling you that in case you are aspiring to join PhD programs in top universities, then you should learn computer programming. Python is known to, that should be there. And if you are looking at PhD programs in European universities, then master's is required. So master's degree in epidemiology, statistics, mathematics, physics, computer science is required. Just see Professor Mark in Imperial College, what he is to offer you. Now, why not to go to Canada? McGill University is good. Human genetics, if your position is remaining open till you join it. So they have kept the position open for you till you join it. McGill says will not fill this position. Okay, so using human genetics, multi-omics, drug target discoveries, master's degree in biology is required. And if you have this, you will approach Professor Yoshi Ji, right? इन्होंने नाम के साथ जी लगा रखा है. Looks like he has visited India and got respect for him, right? University of Mississippi, USA, and PhD biomedical engineering में, molecular recognition, machine learning, data science, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड में. और अपने भाई साहब हैं सुशील मिश्रा जी, वो आपको अपॉर्चुनिटी दे देंगे. तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी यूएस में अगर आप जाना चाहते हैं, बायोमेडिकल बैकग्राउंड से हैं और इस फील्ड से रिलेटेड है, तो सुशील जी को कॉन्टैक्ट करते हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, आजकल आग लगी हुई है कैलिफोर्निया, सदर्न कैलिफोर्निया में, लेकिन जब तक आप जाएंगे तो बुझ जाएगी. बायोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में अगर आपको जाना है, रिमोट सेंसिंग जीआईएस, इसमें आपने काम किया है, आपके पास मॉडलिंग जीआईएस पाइथन का नॉलेज है और मास्टर्स डिग्री रखते हैं आप एग्रीकल्चर, रिमोट सेंसिंग, कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो आप भाई साहब यहाँ पे जा सकते हैं. हमें इनको मेल ड्रॉप करना है, जिसको वॉर्म मेल बोलते हैं. डेल्फी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नीदरलैंड, यूएस ही क्यों जाना है, लेट्स गो टू नीदरलैंड. तो बायो नैनो साइंस, नाम बड़ा कैची लग रहा है. कार्बन कैप्चर में आप जाएंगे भाई साहब, कार्बन कैप्चर में पूरी दुनिया कार्बन कैप्चर करने में लगी हुई है. नेट जीरो हमें अटेन करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अटेन करने हैं. तो अगर आपका बैकग्राउंड एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स, कार्बन कैप्चर से रिलेटेड और आपके पास मास्टर्स डिग्री है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग में, और आपका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है इन पर्टिकुलर फील्ड्स में, देन यू कैन ज्वाइन. सो लेट्स
get in touch with Professor Greg. Okay, now campus biomedico University of Rome. अरे वंडरफुल, रोम इटली। पढ़ भी लोगे, घूम भी लोगे, हमें भी लोगे, आपके पास मिलने आएंगे, आप रोम हमें घुमाओगे। दिस इज द यूनिवर्सिटी यू कैन ज्वाइन फॉर कंप्यूटर साइंस। Wonderful university, integration framework including multimodal data for the assessment of AI based robotics rehabilitation। तो ये फील्ड में अगर आपने काम किया है फ्रेंड्स, तो प्रोफेसर नेवियो को कांटेक्ट करते हैं और नेवियो साहब के पास जाके पीएचडी करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सिनसिनाटी, नाम से ही काफी वाइब्रेटिंग लग रहा है, सिनसिनाटी। मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग, पूरा साल जब तक आप नहीं पहुंच जाते सिनसिनाटी अपनी ऑप्शन ओपन रखेगा। ऑप्टिमाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन लीनियर एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यस, ये है बात जो फिजिक्स जो पीएचडी वाले में होनी चाहिए। तो थ्योरेटिकल काम नहीं चलेगा भाई साहब, आपको ये सब चीज आना चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन एंड कंट्रोल वगैरह आना चाहिए। मास्टर्स डिग्री लेके बैठे हो मैकेनिकल एरोनॉटिक्स घर में, तो उस डिग्री का यूज करो। अगर 8 सीजीपीए लेके मास्टर्स डिग्री एरोनॉटिक्स में लेके बैठे हो और कुछ काम करना चाहते हो, सीजीपीए अच्छा है, तो आप ये यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो। कम ही लिखा होता है सीजीपीए कितनी चाहिए, तो अगर आपकी सीजीपीए मैटर करती है और दबा के पैसा दे रहे हैं आपको, ये देखो ये $31,000, ये 2,500 आपके पास हो गया डॉलर, तो ये अच्छा है आपके पास। दिस इज क्वाइट अ गुड स्कॉलरशिप, 1 लाख रुपए महीने का आप इसमें बचा लोगे फॉर श्योर। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन, अच्छी यूनिवर्सिटी, क्यूएस रैंक देख लो। वैसे तो मैं बोलता हूँ देखना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको देखना चाहिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप, आपको क्यूएस रैंक नहीं देखना चाहिए, आपको भाई साहब ये देखना चाहिए पैसा कितना मिल रहा है। तो पैसा कितना मिल रहा है और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कैसा है, ये देखना इंपॉर्टेंट होता है। क्यूएस रैंकिंग इज नॉट द ओनली पैरामीटर। तो पूरे साल बायोमेडिकल में वो आपको वेट करेंगे, जब तक आप नहीं पहुंच जाते तब तक आपकी वेट करेंगे। अब देखो ये आपको क्यूएस रैंक 66 है, 26,000 मिल रहा है, यहाँ क्यूएस रैंकिंग 200 है, यहाँ 31,000 मिल रहा है, तो अकॉर्डिंगली आपको जाना है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एल पासो, अच्छा है, एल पासो है। सो आपके पास एनवायरनमेंट साइंस में अगर कुछ थोड़ा बहुत आपने ढंग का काम किया है तो आप ट्राई करो, इस डोमेन में जाने की ट्राई करो। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जरूर पढ़ लेना, डॉक्यूमेंट आपको दूंगा इन यूनिवर्सिटीज के बारे में। इन यूनिवर्सिटीज को ज्वाइन करने से पहले इनके बारे में अच्छी अच्छी बातें सीख के जाना। और अगर आपको किक मिलता है, अगर आपको लगता है कि इन यूनिवर्सिटीज में किसी भी रिसर्च में आपने जाना है जो आपने से रिलेटेड है, तो इशिता मैम को कॉन्टैक्ट करो, शी विल हेल्प यू टू गो फॉरवर्ड, राइट। बहुत बार बता चुका हूँ, स्टेप्स जो हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो अपना प्रोफाइल असेसमेंट कर लो। हर कोई जा नहीं सकता, जिसका रिसर्च बैकग्राउंड नहीं है, रिसर्च वर्क नहीं है, वो नहीं जा सकता। तो अगर आपका रिसर्च बैकग्राउंड है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपका रिसर्च बैकग्राउंड है क्या, किस फील्ड में रिसर्च इंक्लिनेशन, वो हमारा मेंटर आपको बैठ के आइडेंटिफाई करेगा। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी रिसर्च से रिलेटेड और दुनिया में कौन कौन काम कर रहे हैं प्रोफेसर, वो पता होना चाहिए। फिर उन प्रोफेसर को मेल डालनी है, लेकिन लविंग मेल होनी चाहिए, वार्म मेल होनी चाहिए, कोल्ड नहीं होनी चाहिए। यार कोल्ड मेल क्यों कर रहे हो, शुरू से रिलेशन कोल्ड से स्टार्ट थोड़ी करेंगे, वार्म से करेंगे। उसके 10-20 ऐसे प्रोफेसर हम लूप में रखेंगे, फिर उनको बोलेंगे भाई साहब हमारी प्रेजेंटेशन सुन लो, हम जो बताना चाह रहे हैं हमारी बात सुन लो और हमें अपॉर्चुनिटी दे दो। ये हमारा सिंपल सा तरीका है। तो ये सब चीज़ करो और आई थिंक इफ यू डू दैट you explore opportunities for you. Go abroad in a smart way. Don't go to burn money, go to earn money. Thank you. All the best.